एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। इस शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस इवेंट को पॉसिबल किया। उसी के साथ साथ शाम की शुभारंभ हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम के साथ करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर राघवेंद्र कुमार सिंह, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, प्लीज स्टेज पर आए और हमारे ऑनरेबल CM गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का स्वागत करें फूलों के साथ। तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Now I would like to welcome Mr. Rajnikant Behra, Vice Chairman, CII Pune Zonal Council and Executive Director, RSV Transmission Limited, to come on the stage for extending a warm welcome to all of us. Sir, please be on the stage. Namaskar and good evening. Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, MSME, Government of Madhya Pradesh, Mr. Sanjay Dubey, Additional Chief Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, Mr. Chandramouli Shukla, Managing Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, Mr. Sudhir Mehta, Chairman and Managing Director, Pinnacle Industries Limited, Mr. Hiroshi Yosuzain, Managing Director, Bitstone, Indians from Media, distinguished guests, and ladies and gentlemen. Good evening and a warm welcome. On behalf of Government of Madhya Pradesh and CII, it's my privilege to extend a warm welcome to each one of you this evening as we gather for the interactive session on the investment opportunity in Madhya Pradesh. It is truly heartening to see such an
esteemed assembly of industry leaders, entrepreneurs, and visionaries from Pune, one of India's most vibrant hubs of IT, auto, manufacturing, and other industries. So, welcome all of you. I would also like to take this opportunity to thank Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav. Sir, आपके कीमती समय निकाल के आने के लिए धन्यवाद, and also to extending such a opportunity to the industries from Pune to interact and align with his vision of investing in Madhya Pradesh, which we will see from now on for the few of the sessions that we have going forward. Also under his leadership, as all of us know, Madhya Pradesh has emerged as a good industrial hub and a growth opportunity that all of us can utilize. So, sir, for your efforts in positioning the state as a progressive and investor-friendly hub has been really transformative. So we look forward to coming and investing in Madhya Pradesh. And also, friends, the success, lot of success initiative that Madhya Pradesh government has taken, like regional industry conclaves across Ujjain, Gwalior, Jabalpur, and other key cities also that has been developed, are some of the volumes of work and the commitment of fostering collaboration and unlocking these growth initiatives is quite commendable. So under his leadership, this has been progressed. And also, he has declared 2025 as the year of industry and employment. It is a reflection of the kind of commitment and dedication for creating an ecosystem in Madhya Pradesh about the investment prioritization, and not only for the industry but for the employment and the entire community development. So that is a big initiative that we know has been going on around entire India to attract investment in Madhya Pradesh, and Pune and industries from Pune definitely look forward to participating in that. So I think today's session also will be a step forward for strengthening these bonds between the industries of Pune and also the opportunities that awaits in Madhya Pradesh. So it is a platform where we can definitely exchange a lot of ideas, forge partnerships, and also collectively then contribute to different industries here in the industrial economic zones and for the definitely for the advancement of a nation. So also all of us know, I mean, in Madhya Pradesh there is a global investor summit. तो सर इन वो समिट में हम CI के तरफ से जितने भी उद्योगपति हैं यहाँ पे हम डेफिनेटली आपके पास जितने मात्रा में आ सके हम डेफिनेटली आएंगे, CI के तरफ से मेरा आपको आश्वासन है. सो वो हम करेंगे एंड सो we're not taking a lot of time between you and our distinguished guests. I once again welcome all of you to what has been a promising and insightful, impactful session for which we look forward. So definitely all of you welcome once again, and we look forward to the session as we go forward. Thank you so much. Thank you, Mr. Rajnikant, sir. Now I'm privileged to welcome Mr. Raghvendra Kumar Singh, IAS. Please come on the stage. Our Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment, Promotion and MSME, Government of Madhya Pradesh. Please come on the stage with a big round of applause. Before starting the presentation, I would request you to please play a small AV on Madhya Pradesh. India,
on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 114 industrial parks, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 6 airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho, Jabalpur and Rewa, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पिनेकल इंडस्ट्री, आपका अभिनंदन स्वागत है। समादरणीय हिरोशी जी, योशीमैन एमडी ब्रिजस्टोन, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। इन्वेस्ट एमपी के इस कार्यक्रम में प्रारंभिक बैट्समैन रजनीकांत जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे एसीएस संजय दुबे जी, राघवेंद्र जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, चंद्रमौली जी, इस सभागार में मौजूद आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हम सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन, हमारी हौसला अफजाई के लिए। खास करके इस संदर्भ में भी जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रोजगार को लेकर के बात करते हैं, और मध्य प्रदेश के लिए इसमें पूना से अगर बात कर रहा हूं तो हम अतीत के उस काल तरफ जाते हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कई कारणों से हमारे दिल के रिश्ते आपसे ज्यादा है, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। किसी और राज्य से ज्यादा बढ़कर हमारा किसी राष्ट्र से संबंध है तो महाराष्ट्र से संबंध है, मुझे इस बात का भी आनंद है। और महाराष्ट्र का मौसम, महाराष्ट्र में खास करके पुणे का मौसम मध्य प्रदेश से बहुत मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश से हमारे लिए, मुझे बताया गया अभी मेहता जी ने, 150 वीडियो कोच से लेकर के कोई फ्लाइट ऐसी यहां से पुणे से निकलती है जो मध्य प्रदेश में इंदौर या भोपाल आए, किसी में भी जगह मिलना सरल बात नहीं। ये आपका प्रेम बताता, हमारे आपके संबंध बताते हैं कितना जबरदस्त लगाव आप सबसे। शादी ब्याह से लेकर के हर एक स्थान पर हमारे आपके प्रेम के संबंध के कई परिलक्षित होने वाले संबंध, जिससे हम अतीत के उस गौरवशाली पेशवा महाराज, सिंधिया महाराज, होलकर, और मुझे तो इस बात का और आनंद है, ये जाने अनजाने लोग समझे नहीं समझे, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है महाराष्ट्र की धरती पर कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा में 300 साल पहले
आज बाबा महाकाल भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसमें बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। हमें इस बात का आनंद है। मालवा के सभी देवस्थान, ओंकारेश्वर, महाकाल और महाराष्ट्र की बेटी ने, और इस बात का आनंद है, ये 300वां वर्ष चल रहा है अहिल्या माता का। अहिल्या माता का भी जिला यही है। मैं इस माध्यम से भी बधाई देना चाहूंगा। उनकी 300वीं जयंती पे आज हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का एक और संबंध पुनः जीवंत कर रहे हैं। और अहिल्या माता ने भी अपने जीवन काल में यहाँ की बेटी हमारी बहू बनकर जब मध्य प्रदेश की धरती पे आती है, तो उस काल में भी यहाँ के निवेशकों की तरह जो भाव उनका है, उन्होंने अपने शासन काल में विविध पक्षों के बीच में, एक तो बेटी शासन कितनी सुदृढ़ तरीके से चलाती है, उनका उस समय का काल का छोटा सा उनका साम्राज्य, लेकिन 5 जिलों का स्टेट पूरे देश के लिए आदर्श बना है। अपने सुशासन के लिए भी, सामान्य लोगों के जीवन में आजीविका के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत सारे उदाहरण अहिल्या माता के भरे पड़े। जब उन्होंने अपने युद्ध काल में युद्ध कौशल के माध्यम से विजयश्री हासिल होना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान दिलाया, तो किसानों को लेकर के कुआं बना करके बगीचा बनाओ, और बगीचा भी ऐसा बनाओ कि 10 बीघे के बगीचे में से एक बीघे पे हम शासन को देना, 9 बीघे में आप आपकी मर्जी है जो करो। ये कितना अच्छा उनने प्रबंधन उस समय किया होगा। मैं कभी सोचता हूं तो ये हमारी उस परंपरा की तरफ ले जाता है, जब अतीत के काल से भारत को सोने की चिड़िया के करके जाना जाता है। हमारे लिए कई प्रकार के उदाहरण हर बार हर जगह अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। हमारे यहाँ कौशल संवर्धन से लेकर के पराक्रम पुरुषार्थ की भावना भी अतीत के काल से जुड़ी हुई। इसीलिए उन सारी बातों को लेकर के जब मैं उद्योगपतियों की तरफ देखता हूं और निवेशकों की तरफ जो बात करता हूं, तो मैं सीना थान की बात कह सकता हूं कि सीमा पे जवान अगर देश की रक्षा करता है, तो ये देश को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका हमारे उद्योगपति निभाते। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से कोई भी देश सशक्त बन सकता है, समर्थ बन सकता है, सामर्थ्यशाली बन सकता है, और अपने कौशल व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया के सामने हर काल हर परिस्थिति में। इसलिए इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड की, वो हमारे यहाँ 250 साल से ज्यादा समय राज कर गए, और उनके यहाँ के सब धनी देशों के धनी या रईसों के पास बड़े पैमाने पे हमारा निवेश का पैसा गया। मैं उस झंझट में नहीं पड़ूंगा, लेकिन केवल संकेत में बताना चाहूंगा, इंग्लैंड उनका काल था जब उनने जो करना वो कर लिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा बहुत छोटे समय में। ये सौभाग्य की बात है, और ये आप सबके बलबूते पे हुआ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं पे आए, तो 6ठे नंबर पर हमने इंग्लैंड को बीट किया। हमें इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी आनंद है, आपको भी गर्व है। और आज हम सब और गौरव से देखते कि ट्रंप अपने शपथ समारोह में अगर हमारे लिए अपने भारत का इम्पोर्टेंट क्या है दिखाते हैं कि उनकी डायस के ठीक सामने सबसे महत्वपूर्ण चेयर पर हमारे देश के विदेश मंत्री को बिठाते, तो हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता है। आनंद आता, और जो दिखाता भविष्य की ओर कि अमेरिका भारत को क्या महत्व देगा। लेकिन ये बात भी सत्य है, सच अर्थों में गुटनिरपेक्षता नीति के बलबूते पर माननीय मोदी जी उनके शासनकाल में हमारे विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जीने के साथ साथ कितने मोर्चों पे काम कर रहे हैं, कितने प्रकार से वो देश के स्वाभिमान को भी रख रहे हैं,
देश के अंदर उद्यमशीलताओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी लेके चल रहे हैं। हम अपने इस व्यवस्था में कहाँ कैसे कोई सोच सकता है कि रूस के राष्ट्रपति भी गले मिलते हो और यूक्रेन ट्रेन से बैठकर जाने की हिम्मत भी कोई दिखाते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। हमें इस बात का भी आनंद है जिसके माध्यम से भविष्य की शांति की पहल भी छिपी हुई है और विश्व में व्यापार की बढ़ने वाली संभावनाओं पे भी काम कर रहे हैं। अपने लिए और आनंद तब आता है जब यहाँ निवेशकों की बात कर रहे हैं और मैं जब आपको निमंत्रण देने आया हूँ, हमने अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्थान पर आमतौर पर इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी तो हमें इंदौर में बार बार अच्छा मौका मिलता था और आप सबके माध्यम से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले समय की कल्पना अगर करें, हमारे लिए आज की स्थिति बन गई है कि इंदौर अब हमारे लिए ग्लोबली रूप से एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए बड़ी संभावना कितने कितने प्रकार की, अगर स्वच्छता की बात करें तो हमारे पास सबसे स्वच्छ शहर में पूरे देश में 7 बार से लगातार अगर ये हम अपनी साख बना के रख रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश की हमारी एक तरह से स्वच्छता की राजधानी हो गया इंदौर, जो व्यापार व्यवसाय की राजधानी भी है, जिसके माध्यम से हम अलग प्रकार से पहचान पाते हैं। और इंदौर के पास का पीथमपुर औद्योगिक नगरी, कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका पीथमपुर से विशेष संबंध है और केवल पीथमपुर नहीं, अब तो मंडी द्वीप भी हमारा आगे बढ़ गया है। अब ये छोटी छोटी इन्वेस्टर समिट करके हम एक तरह से अपने वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। रोड शो जब हम करने देश में जा रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, कोयम्बटूर का हो, कलकत्ता का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा। और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको आश्वस्त करता और एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जब हमारी इन्वेस्टर समिट रीजनल हो चुकी है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 तारीख को होने वाली है। उसके पहले हमने, यद्यपि कई सारे हमारे सभी सुयोग्य अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की सारी पॉलिसियों पे बात की है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारी आकर्षक पॉलिसियां सभी सेक्टर को लेकर के, एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, फार्मा, जिस भी क्षेत्र में हर एक सरकार के विभाग के द्वारा आकर्षक से आकर्षक पॉलिसी है। अभी मैं मजाक कर रहा था मेहता जी को बताते हुए, आप कभी महसूस करेंगे, मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप सब समझते होंगे। हमारे मध्य प्रदेश वो इस कारण से भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती और किसी प्रकार की दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप इंडस्ट्री लगाओ, केवल आजकल तो तकनीक का जमाना, यहाँ से आप कंडक्ट करोगे, वहां से आप अपना काम चलाते रहोगे, सब अपना अपना काम करते हैं। हमारे में से कई सारे लोग यहाँ मेरे बैठे हुए उद्योगपतियों से भी और कई जो सामने बैठे वो लोग भी है। मैं भी लगभग 20-25 साल से सरकारी अलग अलग पदों पे रह चुका हूँ। मैं अभी मजाक कर रहा था मेहता जी से कि आपकी भी हमारी इंडस्ट्री 15 साल से चल रही है, लेकिन मुझे ही नहीं, इंदौर से उज्जैन की दूरी दूर नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, अभी 1.25 साल से मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का मुझे नहीं मालूम। ये हमारी काम करने का तरीका है कि सब अपना अपना काम करे, इजी काम करे, कहने के लिए नहीं। इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर सभी सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके हर क्षेत्र में आईटी का सेक्टर भी हमारा बहुत आकर्षक है। तो मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जब हम करने वाले हैं तो उसका निमंत्रण भी दे रहा हूँ और उस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम सब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके और हमारे संबंध और मजबूत बने। और खास करके वर्तमान के दौर में जब हमको कई सारी विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर बाजार की संभावना मध्य प्रदेश की और देश की आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कमोबेश हम आज चौथे के आसपास तो पहुंच ही रहे।
और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं कि आप सब जो भी निवेशक यहाँ है, परमात्मा ने आपको एक विशेष यश दिया है। हम सब कभी कभी इस भाव को भूल जाते हैं कि हम अपने उस उद्योग की व्यवस्था के भरोसे जो आप उद्योगपति का दर्जा पाते हैं, सच मानो आप उद्योगपति नहीं है, कई सारे लोगों का जीवन बनाने वाले भाव में आप सम्मिलित हैं। आपके माध्यम से कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, बड़ी संभावना आपसे छिपी हुई। एक तरफ आप लोगों को रोजगार देते हैं, दूसरी तरफ भारत को स्वाभिमान के साथ दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में ले जाने में मदद करते। और हमारे लिए तो भाव भी ऐसा है कि हमारा दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो जियो और जीने दो की भावना पे चलता है। हम किसी देश पे आक्रमण करने नहीं जाते, लेकिन हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो और मिलजुल करके मानवता की जय करें। इसलिए अपने बीच में अगर जापान से आकर निवेशक बैठते तो हम उनका भी स्वागत करते और हमारे संबंध उसी प्रकार से रहते हैं जिसको अतीत के काल से लंबे समय से जाने जाते हैं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन। यादव को आप सुन रहे थे। सर, ये एक हमारा इंटरैक्टिव सौभाग्य- सेशन है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। इसमें है कि आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र जो है इकोनॉमी हमारा राज्य है और इसी को लेकर वहां पर वो पहुंचे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट जो मध्य प्रदेश में की जाएगी, अब मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, डेवलपमेंट से जुड़ी या शिक्षा से जुड़ी, किसी भी रूप में जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो हमारे महाराष्ट्र को आगे लेकर जाए, इसी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। इन्वेस्टमेंट जो है की जा रही है, एक इंटरैक्टिव सेशन आप इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एक मुलाकात का दौर था जब बाहर से आए हुए जितने भी बड़े बड़े अधिकारी वर्ग थे या फिर हमारे इन्वेस्टर्स थे वो वहां पर पहुंचे और इन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। मध्य प्रदेश में अब निवेश बढ़ेगा, वो निवेश हर एक सेक्टर में बढ़ेगा, चाहे शिक्षा के सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे मध्य प्रदेश को डेवलप करना हो, उसी के ऊपर मुख्यमंत्री बातचीत करने के लिए पुणे पहुंचे। से मध्य प्रदेश में हैं और 3,500 लोग हमारे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और इस साल हम लोग मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नए प्लांट का पीतमपुर में कर रहे हैं। तो दूसरा उनका क्वेश्चन था कि कुछ मध्य प्रदेश में आपकी क्या जरूरत है, तो मैंने उनको यही कहा कि सर बस चाय पीने आया हूं आपके साथ। मध्य प्रदेश में जो भी जरूरत होती है वो नॉर्मल लेवल पे पूरी हो जाती है। So, ladies and gentlemen, this is the crux of Madhya Pradesh. The number one reason for being in Madhya Pradesh, and I have been fortunate to be associated with Madhya Pradesh for almost 3 decades, is the fact that Madhya Pradesh is a state where things get done. And this means if you need a permission, it will happen. You need land, आप अप्लाई करेंगे, लैंड आपको मिल जाएगा। आपने सुना क्योंकि किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उन तमाम बातों पे तो चर्चाएं हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है वो इकोनॉमिकली हर एक देश को पछाड़ दे और हम जो है हमारा यानी भारत जो राष्ट्र है वो आगे बढ़कर जीडीपी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हम लोग आगे जाए, उसी को लेकर महाराष्ट्र से संवाद जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जा रहा है। वहाँ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं।